Hello, students. I hope you all are doing very great at your end. I'm going to start the grammar series from today. In this series, each and every topic of grammar will be covered. That is from basic, elementary to intermediate level. Okay. See, I have tried my best to find the best ever sources for you. You have to just go through these videos and it will help you in your exams. I'm damn sure. Let's start with our first lesson. That is, we will learn some important definitions today that we should have known about. Okay, see, everybody, I mean, your parents, your teachers, they suddenly ask you these definitions, these basic definitions. So it's very important to know all the basic definitions of grammar. So let's start our topic of today. First definition is grammar. What is grammar? As you can see, grammar is composed of two words. Grammar is composed of gram plus r. Gram means measurement, r means doer. See, you know na, kilogram, hectogram, milligram, है ना? These all are what? Measurement scales. So these measurement scales, what is the use of these measurement scales? They measure the things. मतलब कुछ भी हम measure करते हैं तो हम किससे करते हैं? इन्हीं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम से करते हैं. So like this, grammar is ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. ग्रामर क्या है? ग्रामर को भी इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि ग्रामर इज़ द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज. जैसे दीज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम इज़ द मेजरमेंट स्केल फॉर थिंग्स, वैसे ही ग्रामर भी एक तरह का मेजरमेंट स्केल है. किसके लिए? ये है लैंग्वेज के लिए. ओके, तो डूअर में क्या होता है? डूअर होता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है. अ पर्सन हु ड्राइव्स अ कार इज़ अ ड्राइवर. A person who manages is a manager. A person who teaches is a teacher. So these driver, manager, teacher, these are called what? Doers. ठीक है. So here we can see grammar can only justify whether the language is correctly spoken or written. Okay. मतलब ग्रामर क्या जस्टिफाई करता है कि लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उसको करेक्ट बोल रहे हैं या करेक्ट लिख रहे हैं. सिंपली ग्रामर, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है कि इट इज़ द ओनली स्केल फॉर अ करेक्ट लैंग्वेज. इन्होंने यहाँ इसको स्केल बताया है, एक मेजरमेंट स्केल बताया है, जो क्या है, जिससे हम लैंग्वेज को मेजर करते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है इसके बारे में. अब कोई भी पूछे तो बता देना. What is a definition? Now the second one is itself the definition. अब definition is also composed of two words, D plus fine. D means down, fine means fine. Okay. Fine is also find out. D means down, fine means find out. जब हम किसी चीज़ को deep down find out करते हैं, इधर ही से हमें पता चला ना, इन दो वर्ड से ही हमें पता चला कि डेफिनेशन का मीनिंग होता है व्हेन वी गो डीप डाउन इन एनीथिंग एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स. दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेफिनेशन. प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग इज द डेफिनेशन. एज सिंपल एज दैट. अकॉर्डिंग टू द ग्रेट फिलोसोफर सर प्लेटो, उन्होंने कहा था कि जो डेफिनेशन होती है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए. क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए जीनस और दूसरा होना चाहिए डिफरेंशिया. ओके, सो एज यू कैन सी, जीनस का मतलब क्या होता है? जीनस होती है क्लास. मतलब कोई चीज़ या कोई पर्सन है, वो किस ग्रुप से या किस क्लास से बिलोंग करता है, राइट. वैसे ही डिफरेंशिया का मतलब होता है डिफरेंट. मतलब जैसे हम लोग, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोग होते हैं. Everybody has its different texture, different way of speaking, different वे ऑफ लैंग्वेज. हर एक चीज़ का अपना नज़रिया होता है. तो
उन्होंने इस हिसाब से कहा था कि डेफिनेशन में एक जीनस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिया होना चाहिए. जीनस मीन्स क्लास, डिफरेंशिया मीन्स डिफरेंट. क्लास शुड बी डिफरेंट. Next one is, what is tense? As you can see, tense is also composed of two words. Tense is also composed of two words. First one is time, second one is sense. And I have read in many books, tense denotes time plus action. Time plus action is equal to tense. The same way it is described here, time plus sense. टेंस टेल अस अबाउट द, क्या हमें बताता है, टाइम और सेंस के बारे में बताता है किसी सेंटेंस में. जैसे टाइम हमारा होता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, राइट. तो जो हमारा क्या बोलते हैं सेंस है, सेंटेंस में क्या है, कौन सी सेंस है उसकी, जब वो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल या इंडेफिनिट है. सो टेंस simply denote the time and action. Now what is sentence? Sentence is also composed of two words, sense plus tense. By looking these words, you can simply say that sentence consists of sense and tense. जिस सेंटेंस में सेंस होगी और जिसमें टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे. जैसे as you can see the example, Jack is heading towards his target. Jack is heading towards his target. So इस सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस की सेंस भी है, इसमें टेंस भी है, और इसमें क्या है, एक्शन भी है. कौन सा एक्शन है, कौन सा टेंस है, और सेंटेंस की पूरी सेंस भी है. अब जैसे मैं बोलूँगी टूवर्ड्स हिज टारगेट हेडिंग इज जैक, दिस सेंटेंस इज नॉट गिविंग एनी सेंस ना, है ना. जब तक कोई सेंटेंस सेंस नहीं देता है, वी कैन नॉट कॉल दैट सेंटेंस अ सेंटेंस, राइट. सो जिस सेंटेंस में सेंस भी हो और टेंस भी हो उसको हम कहते हैं सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज सब्जेक्ट? Subject is made up of two words also, sub plus ject. Sub means somebody, ject means do. सिंपल वर्ड्स में इफ़ वी कैन से, सिंपल वर्ड्स में सब्जेक्ट जो होता है काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. समबडी हु डज वर्क और हैज़ अ स्टेट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. समवन जो क्या करता है, काम करता है, जैसा मैंने कहा वो होता है सब्जेक्ट. जैसे हेनरी राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स. हेनरी इज़ द सब्जेक्ट हेयर, राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स. और वो क्या करता है, हेनरी क्या काम कर रहा है यहाँ पे, अपने माता पिता को क्या कर रहा है, खत लिख रहा है. ओके. नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज ऑल्सो composed of two words, pre plus decate. Pre means beginning, decate means tell. शुरू में बताना, शुरू में बताना. तो शुरू में हम क्या हमेशा यूज़ करते हैं, शुरू में हमेशा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है. सब्जेक्ट इज़ ऑफन यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सो बाय सीइंग दिस we can say that predicate tells us about the action or state of the subject in a sentence. तो predicate हमें क्या बताता है, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, she does her duty for the sake of her parents. She is the subject here, as you know, and does her duty for the sake of her parents is predicate. तो ये क्या कर रहा है, हमें predicate क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सेम वे ऑब्जेक्ट इज ob प्लस जेक्ट. ob मीन्स इफेक्ट, जेक्ट मीन्स एक्शन. सिंपल भाषा में देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए. क्या? जिस पर वर्क हो रहा होता है. सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला, ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम किया जाए. सो एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस. तो क्या करता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो रिसीव करता है क्या, इफेक्ट रिसीव करता है. क्या इफेक्ट आ रहा है सेंटेंस में, क्या एक्शन हो रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, वो रिसीव करता है. जैसे शैली क्रैक्स प्लेट्स इन द हॉल. तो प्लेट्स
शैली क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। प्लेट्स क्या है इसमें, शैली क्या कर रही है, प्लेटें तोड़ रही है हॉल में, तो प्लेट्स यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल जो होता है सिंपल वे में, मॉडल इज ऑल्सो composed of two words. See how beautifully this is looking, isn't it? मतलब how beautifully this is shown here. आपको समझ आए कैसे उन्होंने इस पे लिखा हुआ है. Hats off to that, to the writer. Model. Now what is model? Model is composed of two words, mood plus all. तो मॉडल जो होता है, मॉडल ऑक्सिलरी प्रेजेंट करती है ऑल काइंड्स ऑफ मूड्स इन अ सेंटेंस. मॉडल्स जैसे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, दीज आर ऑल मॉडल्स. दीज मॉडल्स, जो ये मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या बताती हैं, हमारे सेंटेंस में कैसा मूड है सेंटेंस का, क्या है मूड सेंटेंस का, क्या रिएक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो हमें बताती है. जैसे क्या बोलते हैं इस सेंटेंस में, जैसे कैपेबिलिटी आ गया, एबिलिटी आ गया, पॉसिबिलिटी आ गया, पास्ट एबिलिटी आ गया, नरेशन आ गया, थ्रेट आ गया, कमांड आ गया, रिक्वेस्ट आ गया. दीज आर ऑल द मूड्स जो एक सेंटेंस में हमें पता चलते हैं. जैसे इफ़ यू टेक एन एग्जांपल हेयर, I will kill you anytime. I will kill you anytime. Will is modal auxiliary here. And what is the mood of the sentence? As you can see, I will kill you and मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ. This is a kind of threat, right? मतलब वो उसको थ्रेट दे रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ. तो ये क्या, इसका मूड बता रहा है, सेंटेंस का मूड बता रहा है. तो will जो है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है. मॉडल ऑक्सिलरी टेल्स अस अबाउट द मूड ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट का मूड क्या है वो सेंटेंस के अंदर, वो हमें ये बताता है. और डू रिमेंबर दैट मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली और एन इंडिपेंडेंट वर्ब. ओके, नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज. लैंग्वेज इज ऑल्सो composed of two words, langu plus age. Langu means talking, age means period. अब टॉकिंग और पीरियड, इससे आप खुद ही हिसाब लगा लो कि जब हम बात करते हैं या लिखते हैं किसी कॉमन पीपल के बारे में तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, टॉकिंग, राइटिंग ऑफ कॉमन पीपल इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए जो सिंपल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हमारे लिए, जो मतलब जो ले मैन को भी समझ आए, सबको समझ आए, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना. अगर जो लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आएगी तो उसका क्या फ़ायदा, मत. ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, सिंप्लीफाइड वे में होनी चाहिए. सी व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग यू इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे कि ताकि आपको समझ आए, है ना. सो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ऐसी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ईजी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि सबको समझ आए. सो दिस इज़ कॉल्ड लैंग्वेज. Next one is literature. Lit plus era. Literature comes from lit plus era. Lit means light up karna, era means period. Lit means light up karna, era means period. So knowledge in the form of prose, poetry, drama, fiction that lights the entire era is a literature. क्या, जब हमें किसी प्रोज, पोइट्री, ड्रामा फिक्शन के फॉर्म में जब हमें नॉलेज मिलता है जो पूरे एंटायर एरा को लाइट अप करता है, एंटायर एरा को क्या करता है, लाइट अप करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिटरेचर. ठीक है, जैसे बहुत सारी पोइट्रीज़ लिखी गई हैं, ड्रामाज हैं, प्रोज हैं, फिक्शन है, बहुत सारे हैं. तो जब हम उन सब के बारे में हमें जब पता चलता है, हमें पूरे एंटायर एरा के बारे में पता चलता है, उसमें भी अलग अलग पीरियड्स हैं उनके बारे में पता चलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिटरेचर. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. हो सकता है टीचर ही कभी पूछे या पेरेंट्स ही कभी पूछे,
अच्छा बच्चे बताओ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर? सो डोंट वरी, योर टीचर इज़ हेयर टू टेल यू. राइटिंग स्पीकिंग ऑफ कॉमन पीपल इज़ अ लैंग्वेज. स्पीक्स जब हम बोलते हैं, लिखते हैं. राइटिंग स्पीकिंग ऑफ कॉमन पीपल इज़ अ लैंग्वेज. राइटिंग स्पीकिंग ऑफ द लर्नड पीपल इज़ अ लिटरेचर. आपको यहाँ पे डिफरेंस लग रहा है ना कुछ? देखो, जब हम किसी के बारे में क्या बोलते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कॉमन पीपल के बारे में जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, बोलना या लिखना ऑफ कॉमन पीपल इज़ अ लैंग्वेज. बोलना या लिखना ऑफ लर्नड पीपल इज़ अ लिटरेचर. लैंग्वेज में सभी आते हैं, सभी लोग आते हैं. लैंग्वेज में सभी लोग आते हैं, उनके बारे में हम लिखते हैं, बोलते हैं, उसको लैंग्वेज बोलते हैं. लेकिन जब हम लर्नड पीपल के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं. आई होप you have got all the definitions. There are so many definitions also, and I will discuss those definitions in the next video. Till then, revise these definitions and take a very good care of yourself. And yes, soon I'll be sharing the Telegram link with you all. If somebody wants to have this PDF, then I'll share this PDF on my Telegram channel. You can download it from there. Thank you so much.